Hello class 7th, again I am K.N. Mishra, your science teacher. Welcome all of you in online classes. Class, before today's online class we have studied about human beings digestive system, in which we have studied about buccal cavity, after that esophagus, after that stomach. Now stomach opens into a coiled structure which is known as small intestine. This small intestine is about 5 to 7 meters long. नाम इसका स्मॉल है बहुत लंबी, about 5 to 7 meters long in human beings. Clear? The basic function, the main function of small intestine is to absorb digested food materials from intestine with the help of finger-like projections known as villi. ये सारी बातें हो चुकी हैं, यहाँ तक हो चुका था. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. There are three prominent glands present in human beings, which secretion is digestive in nature, digestive in function. Clear? These three glands are, first gland is salivary gland, which is 3 pair in number and present in our buccal cavity. Now second gland is liver, which is the largest gland present in human body. Largest gland, about 750 gram to 1.5 kilogram. ये weight होता है इसका, ठीक है. Liver is the largest gland found in human beings, and liver is also known as mixed gland. Mixed gland. Why mixed gland? Because it is a combination of endocrine and exocrine, both kinds of glands. Clear? Now come to liver. Liver is the largest gland. In addition to secrete some enzymes, it also secretes bile juice. Bile juice and hormones are secreted by liver. Now the bile juice secreted by the liver is stored in gallbladder, and this bile helps in digestion of fats. ठीक है. बाइल का कोई डाइजेशन में रोल नहीं है, डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में स्पेशली ये हेल्प करता है. ठीक है. इसके अलावा बाइल का क्या रोल है? बाइल मेक द मीडियम एल्कलाइन फॉर एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस. ठीक है. मीडियम को एल्कलाइन में चेंज करता है, क्योंकि पैंक्रियास से जो जूस निकलते हैं, सेक्रेट होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, वो एसिडिक मीडियम में नहीं काम करते, तो उस मीडियम को चेंज करना जरूरी होता है. सो टू चेंज दैट मीडियम, bile juice plays very important role in changing this pH. Clear? Now come to another gland present in human beings, which is pancreas. These all things are written in your book also. Pancreas is also known as, students, the second largest gland of human body. Second largest gland of human body. जरूर आपने नाम सुना होगा इंसुलिन हार्मोन का और ग्लूकागॉन हार्मोन का, जरूर नाम सुना होगा. ये दोनों हार्मोन लीवर से, पैंक्रियास से सेक्रेट होते हैं. ठीक है. नाउ पैंक्रियास सेक्रेट पैंक्रियाटिक जूस which contains some enzymes which are responsible for breakdown of carbohydrates and proteins. तो पैंक्रियाटिक जूस का क्या इंपॉर्टेंस है? पैंक्रियाटिक जूस contains some special type of enzymes which are responsible for digestion of carbohydrates and proteins, and with the help of these enzymes, carbohydrate breaks into glucose and proteins used to break into amino acids. Clear? Now small intestine, although I have previously explained about small intestine, in small intestine small finger like projections are present which are known as villi. These villi increases the absorption surface area. ठीक है. In small intestine
absorption of digested food material takes place, and in addition to absorption, assimilation also takes place. What is assimilation? Assimilation is the reaching of digested food materials to the organs, to the cells, to the tissues. Now, in human beings digestive system, after small intestine come to large intestine, which continue after small intestine in our alimentary canal. Large intestine is divisible into colon and rectum. पहले कोलन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद रेक्टम होता है. हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे यहाँ पे, इसका नाम बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है मेजरमेंट में. ठीक है. कोलन एंड रेक्टम. रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन विच आवर अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड. क्लियर? क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में? द बेसिक फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड एक्स्ट्रा वाटर. ठीक है, ये इसका फंक्शन है. और उसके बाद एक फंक्शन इसका है ईजेशन. व्हाट इज ईजेशन? Egestion is the process of removing excretory material from the body. It is the process of removing excretory material from the body. Clear? Start. Now, one more thing is written in your book about lymph. Lymph का नाम सुना है कभी? About lymph. Lymph is also known as tissue fluid. It is white in color, or you can say colorless. It bathes the cell and lies outside the cell. ये खास बात है. हर सेल को ये बात करता है, हमारी बॉडी के हर सेल को ये बात करता है, लेकिन सेल के भीतर नहीं होता, दो सेल के बीच में होता है, इंटरसेलुलर स्पेस में. आता कहाँ से है? ये आता है जो वेन्स होती हैं हमारी, वेन्स का नाम सब लोग सुने होंगे. वेन्स से ब्लड फ्लो करता है किधर से किधर? ऑर्गन से हार्ट की तरफ वेन्स में ब्लड फ्लो करता है. उन वेन्स में छोटे छोटे बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं. उन पोर्स से ब्लड प्लाज्मा कभी कभी बाहर निकल आता है. वही ब्लड प्लाज्मा चेंज हो जाता है लिम्फ में. ठीक है. और जब लिम्फ में जाता है तो वो लिम्फ फिर जाकर के कलेक्ट होता है लिम्फ ग्लैंड्स में, लिम्फ वेसल्स में, वो जाकर के कलेक्ट होता है, फिर वापस वो चला जाता है उन्हीं वेन्स में. ठीक है. एनीवे, लिम्फ कॉन्सिस्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, स्पेशली फैट ग्लोब्यूल्स. फैट के ग्लोब्यूल्स का स्टोरेज ऑर्गन है फैट के ग्लोब्यूल. ठीक है. अब फैट के ग्लोब्यूल्स का मतलब क्या? जैसे जब अभी हम यहाँ पे आपको डिस्कस किया है, कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है ग्लूकोज में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है ग्लूकोज में, तो कार्बोहाइड्रेट का यूनिट क्या हुआ? ग्लूकोज. ऐसे ही प्रोटीन्स ब्रेक होते हैं अमीनो एसिड में, तो प्रोटीन्स का यूनिट क्या हुआ? अमीनो एसिड. ठीक वैसे ही फैट का ब्रेकडाउन जब होता है तो वो चेंज होता है फैटी एसिड में. सो फैटी एसिड इज द यूनिट ऑफ फैट एंड फैट इज स्टोर्ड इनटू द एडिपोज टिश्यू. ठीक है. इतना लिम्फ के बारे में था. इट फ्लोज इनटू लिम्फ डक्ट एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स. ये आपकी बुक में लिखा होगा. ठीक है. नाउ इतना डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपकी बुक में. इसके बाद एक टॉपिक यहाँ पे छूट रहा है. एक डिजीज़ का नाम दिया हुआ है आपकी बुक में, डायरिया, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ है. ठीक है. डायरिया क्यों कॉज होता है हमारी बॉडी में? जब हम फूड इनटेक प्रॉपर तरीके से नहीं करते, या फूड पॉइजनिंग की वजह से, या हमारा जब पानी जो है वो ड्रिंकेबल नहीं है, ऐसी कंडीशन में हमको डायरिया हो जाता है. और डायरिया है क्या? डायरिया डिजीज़ में हमारी बॉडी से वाटर और मिनरल्स का बहुत तेज लॉस होता है. इस कंडीशन को कहते हैं डिहाइड्रेशन. और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं ORS के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन.
इतना ही आपकी बुक में लिखा हुआ है डायरिया के बारे में स्टूडेंट्स। आफ्टर टुडेज ऑनलाइन क्लास, इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास वी विल स्टडी अबाउट डाइजेशन इन च्यू एंड कड एनिमल्स। च्यू एंड कड एनिमल्स मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल्स। क्लियर? दिस इज ऑल फॉर टुडे क्लास। Revise whatever taught today. This is your homework. Revise taught topics today. Clear? Stay home students and be safe. Thank you class sir.